گوری کوی اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ اسے کسی بوڑھے پکشی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ پانی، پانی، کوئی مجھے پانی دے، میں مر رہی ہوں، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ گوری کوی آواز سن کر وہاں جاتی ہے۔ کوی، مجھے پانی پلا دو، میری کچھ ہی سانسیں باقی ہیں، مجھے پانی دو۔ میں سمجھی کچھ کھانے کو دو گی تم مجھے بلا کر، اور تم مجھ سے پانی مانگ رہی ہو۔ اتنا سمے نہیں ہے اس زمانے میں کسی کے پاس بھی جو تم بوڑھی اماں جی کو پانی لا کر پلائے۔ ایسا کہتے ہوئے گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دور گوری کوی کو چڑیا ملتی ہے۔ وہ چڑیا کے پاس چلی جاتی ہے۔ کیسے کیسے پکشی مل جاتے ہیں، میرا کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا اس بوڑھی اماں جی نے۔ کس نے گوری بہن، کیا ہوا ہے؟ وہی بوڑھی فاختہ ایسے اونچی آواز سے چلا رہی تھی، میں سمجھی کوئی کھانے کی چیز بانٹ رہی ہے۔ جب میں پاس گئی تو مجھ سے پانی مانگنے لگی۔ تو پھر دیا کیا آپ نے اسے پانی؟ میں کوئی نوکر ہوں اس اماں جی کی جو اسے پانی دیتی، مرتی ہے تو مرے، میری کیا لگتی ہے؟ آپ نے بہت برا کیا، میں ابھی اسے پانی پلا کر آتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا ترنت وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ چڑیا بوڑھی فاختہ کے پاس جاتی ہے۔ پانی، پانی، کوئی مجھے پانی پلا دے۔ ماں جی، آپ اپنا منہ کھولیں، میں لائی ہوں آپ کے لیے پانی۔ پھر بوڑھی فاختہ اپنا منہ کھولتی ہے اور چڑیا رانی اسے پانی پلاتی ہے۔ اس کوی نے مرتے سمے میرے منہ میں پانی بھی نہ ڈالا اور مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ ماں جی چھوڑیں اسے، وہ کوی تو ہے ہی ایسی۔ میرا صندوق، میرے صندوق میں کچھ ہے۔ چڑیا، تم میرا صندوق اپنے گھر لے جاؤ اور اس میں جو ملے اس سے غریب پکشیوں کی مدد کر دینا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جسے میں یہ سب دے سکوں۔ ایسا کہتے ہوئے بوڑھی فاختہ مر جاتی ہے۔ چڑیا وہ صندوق اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے۔ مما، یہ صندوق آپ کہاں سے لائی ہیں؟ کیا ہے اس میں؟ گڑیا بیٹی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ صندوق مجھے بوڑھی فاختہ نے مرتے سمے دیا ہے۔ پھر مما چڑیا اس صندوق کو کھولتی ہے۔ اس صندوق میں ڈھیر سارے روپے تھے جو بوڑھی فاختہ کی ساری زندگی کی بچت تھی۔ گڑیا بیٹی، اس میں تو بہت سارے پیسے ہیں، ہم امیر ہو گئے مما، ہم امیر ہو گئے۔ نہیں بیٹی، بلکہ ہم پر ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے ماں جی نے، ہمیں یہ پیسے غریب پکشیوں کے لیے خرچ کرنے ہوں گے، یہی کہا تھا مجھے بوڑھی ماں جی نے۔ پھر چڑیا سارے غریب پکشیوں کو بتا دیتی ہے کہ جسے بھی مدد کی ضرورت ہو وہ اس سے بوڑھی فاختہ کے پیسوں میں سے پیسے لے سکتا ہے۔ چڑیا، میری ماں کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اگر آپ کچھ پیسے مجھے دے دیں تو میں اپنی ماں کی آنکھوں کا آپریشن کروا سکوں۔ یہ لیں، یہ پیسے آپ لے جائیں، اور اگر کوئی دوسرا پکشی مصیبت میں ہو تو اسے بھی بھیج دینا، میرے پاس بوڑھی فاختہ کے دیے ہوئے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ بات گوری کوی اور کالو کوے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ کالو، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے اس دن، اگر میں اس بوڑھی فاختہ کو پانی پلا دیتی تو آج چڑیا کی بجائے نوٹوں بھرا صندوق میرے پاس ہوتا۔
पहले उस बूढ़ी फाख्ता के पास तुम ही तो गई थी और तुमने ही तो बताया था चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता के बारे में। चलो हम चिड़िया से जाकर बात करते हैं। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, मेरी बात सुनो, तुम ये नोटों से भरा संदूक मुझे दे दो, क्योंकि पहले बूढ़ी फाख्ता के पास मैं गई थी और अब गरीबों की मदद मैं ही करूँगी। ऐसा सोचना भी ना गोरी बहन, माँ जी ने ये काम मुझे दिया है और मैं ही इसे करूँगी। हम कौन सा ये पैसे घर में रख लेंगे, हम भी तो गरीबों में ही बांट देंगे। जो गरीब आपके पास आए आप उसे मेरे पास ले आना और फिर मैं उसकी मदद कर दूंगी। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दें। फ्रॉड ये कहीं के बड़े चातर बनते हैं। फिर कबूतर के पास एक गरीब पक्षी आता है। मैं बहुत गरीब हूँ दोस्त, सुना है चिड़िया के पास कुछ पैसे हैं जिनसे वो गरीबों की मदद करती है। हाँ, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। तो फिर आप चले मेरे साथ। फिर कबूतर उस गरीब पक्षी को साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। ये लें, क्या इतने पैसों से आपके बेटे का इलाज हो जाएगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे मेरे बेटे के इलाज के लिए काफी होंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, कुछ करो, अगर कुछ ना किया तो वो चिड़िया सारे ही पैसे गरीबों में बांट देगी। बड़ी ईमानदार बनती है वो। मेरे पास एक उपाय है गोरी, क्यों ना हम गरीब बन जाएं और चिड़िया से जाकर कहें कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। मैं सब समझ गई और हमें तुम्हारे इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। ऐसे तो चिड़िया हमें जरूर पैसे दे देगी। फिर गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। कबूतर भी चिड़िया के पास ही बैठा हुआ था। हाय हाय, मैं लुट गई। चिड़िया, मैं बर्बाद हो गई। गोरी, तुम्हारे पास है ही क्या जो लुट गया? कबूतर, मेरे कालू को डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर बताया है और मुझे उसके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में कालू को ब्लड कैंसर है? ऐसा झूठ भी कोई बोल सकता है क्या? मेरे कालू को बचा ले चिड़िया, जल्दी जल्दी से मुझे 2 लाख रुपए दे दे जो बूढ़ी फाख्ता के हैं तुम्हारे पास। बचा लो, मेरे कालू को बचा लो। चुप कर जाओ गोरी, ये पैसे ऐसे कामों के लिए ही तो हैं। ये ले, आप ये 2 लाख ले जाएं। ठहरो चिड़िया, ये पैसे मुझे दो, मैं कालू को खुद अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे पैसे दे दें, मैं ले जाऊंगी अपने कालू जी को। आप मेरे साथ चलें, मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? फिर कबूतर चिड़िया से पैसे लेता है और गोरी के साथ जाता है। मर गया, बहुत दर्द है, हाय मर गया। देख लिया, अब अपनी आँखों से मर रहा है मेरा कालू। लाओ, अब पैसे मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कालू जी को ले जाती हूँ। पड़ोसी हूँ मैं आपका, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? चलो कालू, मेरे साथ चलो चेकअप करवाने। गोरी, ये कबूतर कहाँ से आ गया बीच में? कबूतर, तुम्हारी आंखें बहुत गंदी हैं। जाओ, तुम जाकर अपना मुंह धो लो और पैसे मुझे दे दो, मैं कालू को ले जाती हूँ। ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मैं तो कालू को साथ ही लेकर जाऊंगा।
फिर गोरी और कालू कबूतर को साथ लेकर झूठ मूठ का चेकअप करवाने चले जाते हैं। बुलबुल कालू कौवे का चेकअप करती है। अभी ब्लड कैंसर इनिशियल स्टेज में है, इलाज हो सकता है। अच्छा हुआ जो आप कालू को मेरे पास ले आए। क्या? गोरी, बुलबुल क्या कह रही है? बुलबुल, हम तो केवल 2 लाख बटोरने के लिए यहाँ आए थे और तुम कह रही हो कि कालू जी को सच में ब्लड कैंसर है। बुलबुल बहन, अच्छे से दोबारा चेक करो। मैंने तसल्ली कर ली है, क्या अब मैं इलाज शुरू करूं? महंगा है इलाज। बुलबुल, आप कालू का इलाज शुरू करें। गोरी, अगर तुम दोनों अब भी ना सुधरो तो कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिली है। तुम्हारा झूठ सच हो गया और कालू को सच में ब्लड कैंसर निकल आया। फिर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं और सारे पैसे कालू के इलाज में ही लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ भी सच हो जाता है। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गोरी कौवी अपने बेटे की शादी करती है और फिर जब उसकी बहू अंडा देती है तो गोरी कौवी वो अंडा तोड़ देती है, क्योंकि उस अंडे से बेटी कौवी निकलने वाली थी। और फिर ये भी आपने देखा कि उसका बेटा जग्गू और बहू वो घर छोड़कर चले जाते हैं। जग्गू कौवा और उसकी पत्नी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चुप कर जाएं। अगर ऐसी रोती रहोगी तो मुझे हौसला कौन देगा? माँ ने जो किया मैं उसकी माफी मांगता हूँ आपसे। मेरी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया सासू माँ ने। मैं सासू माँ को कभी माफ नहीं करूँगी। नीलो, हम इस जंगल में अपना नया घर बनाएंगे जो हमारा होगा। वहाँ मैं और आप रहेंगे और ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा। उसमें से बेटा निकले या बेटी, हमें किसी का कोई डर नहीं होगा। अपने पति की बातें सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ा हौसला होता है। पति जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया। अगर आप भी मेरा साथ छोड़ जाते तो मैं कैसे जी पाती। चलो हम अपने लिए घर बनाते हैं। नीलो, मगर मुझे तो घर बनाना नहीं आता। लेकिन मुझे आता है। आप सूखी लकड़ियाँ लाएं और मैं सूखे तिनके और सूखे पत्ते। फिर देखना मैं अपने लिए कैसा सुंदर सा घर बनाती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने काम पर लग जाते हैं। न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। गोरी, तुमने भी तो गलत ही किया जो उसका अंडा तोड़ दिया। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बेटा उसके जाल में फंस चुका है। वो भी उस काली के साथ ही घर छोड़कर चला जाएगा। वो पत्नी है उसकी, वो उसका साथ ना देता तो क्या तुम्हारा साथ देता? तुमने तो कभी मेरा साथ दिया नहीं था। ये तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी का इतना प्यार करेगा, ऐसा तो सोचा भी ना था मैंने। अगर मुझे ये सब पता होता तो कभी अपने बेटे की शादी ना करती। चिड़िया उनके घर आती है। गोरी बहन, क्या बात है? कुछ दिनों से आपकी बहू और बेटा नजर नहीं आ रहे। अपने पीछे लगा कर ले गई मेरे बेटे को। अलग रहना चाहती थी इसलिए ले गई वो चातर कौवी मेरे बेटे को अपने साथ। मैंने तो सुना है आपने खुद अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया है। मुझे बुलबुल ने बताई है ये बात। तो वो बुलबुल अब सबको बताएगी कि मैंने अपनी बहू का अंडा तोड़ दिया था। मैं अभी जाकर उस मोटो को पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी तुरंत वहाँ से चली जाती है। सुनो सुनो गोरी बहन, मेरी बात तो सुनो। कौवी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अब ये बुलबुल को नहीं छोड़ेगी। चिड़िया,
तुमने बुलबुल का नाम लेकर गलती ही की। कालू भैया, समय के साथ साथ पक्षी खुद को बदल लेता है, मगर गोरी ने खुद को अभी तक नहीं बदला। अब हम बूढ़े हो गए हैं। गोरी को ना तो अपनी चिंता है, ना अपने बेटे की, और ना ही अपनी बहू की। जग्गू और उसकी पत्नी नीलो ने मिलकर काम किया था और उन्होंने रात होने से पहले पहले अपने लिए एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित घर बना लिया था। नीलो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घर आपने बनाया है। मैंने अपनी माँ से सब सीख रखा है। मुझे मेरी मम्मा ने सब काम सिखा रखे हैं। मैं तो तेज बारिश में भी उड़ सकती हूँ। फिर वह खुशी खुशी अपने घर में सो जाते हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन जग्गू कव्वे और उसकी पत्नी को फिर से खुशी मिलती है, क्योंकि नीलो कव्वी ने आज 2 अंडे दिए थे, जिन्हें देख वो दोनों बहुत खुश थे। देखा नीलो, मैं ना कहता था कि ऊपर वाला हमें फिर से खुशियाँ देगा। माँ ने हमारा 1 अंडा तोड़ा था और भगवान ने हमें 2-2 अंडे दिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कोई नहीं है जो मुझसे पूछे कि मेरे अंडों से बेटा निकलेगा या बेटी। आज मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। फिर नीलो कव्वी अंडों की रक्षा करती और उसका पति जग्गू कौवा अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आता। एक दिन जग्गू कौवा भोजन लेने गया हुआ था कि रास्ते में उसे उसकी माँ मिल जाती है। जग्गू मेरे बेटे, कैसे भटकते फिर रहे हो? मेरे बेटे, वापिस आ जाओ, वापिस अपने घर आ जाओ। मैं अपने बेटे की फिर से शादी कर दूंगी। पहले से भी ज्यादा सुंदर कव्वी ला कर दूंगी अपने बेटे को। आप मेरी माँ हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, मगर मुझे अफसोस है कि आपके नजदीक शादी ब्याह, रिश्ते नाते, घर परिवार कितना छोटा है। माँ, आपने मेरा 1 अंडा तोड़ा था, ऊपर वाले ने हमें 2 अंडे दिए हैं। माँ, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर अपने लिए घर भी बना लिया है। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने खुद से जीना सीख लिया है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। माँ, मुझे जाने दें, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए उसका बेटा जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। न जाने क्या जादू किया है उसने मेरे बेटे पर। मेरा बेटा और मेरी ही बात नहीं सुनता। पास में बैठा तोता उनकी सब बातें सुन रहा था। गोरी बहन, आप गर्व करो खुद पर कि आपका बेटा आप पर नहीं गया। उसे घर परिवार की चिंता है। आप तो डायन हो जिसने अपने ही बेटे का अंडा तोड़ दिया। बुलबुल को तो तुमने मारकर चुप करवा दिया और चिड़िया भी तुमसे डर गई। मैं अब सबको बताऊंगा तुम्हारे काम कि तुम कितनी जालिम हो। तुम कातिल हो अपने ही बेटे के अंडे की। तोता ऐसे एक ही बार में सब कहता है। आज गोरी चुप थी। वो मुकाबला करने की बजाय वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे गोरी आज खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी। वो खुद को गुनहगार समझने लगी थी। समय भी एक जैसा नहीं रहता। समय कब रुकता है? समय गुजरता गया और फिर एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। वो तो अब ज्यादा समय घर में ही रहते थे। गोरी, अगर आज हमारा बेटा हमारे पास होता तो वो हमें संभाल लेता। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो हमारी बात सुने, हमारा दुख दर्द बांटे। कालू, जो भूल मुझसे हुई मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ना मैं अपने बेटे और बहू का अंडा तोड़ती और ना वो घर छोड़कर जाते।
ایسے کہتے ہوئے گوری کوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے۔ مما مجھے نہیں پتا، میں تو دادو سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ اور میں بھی دیکھوں گا میرے دادا اور دادی کیسے ہیں۔ بچوں میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ کے دادا اور دادی ہم سے نہیں بولتے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ مما انہوں نے آپ کو گھر سے نکال کر برا کیا تھا، کیا برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں؟ کیا بڑے اگر کوئی گناہ کریں تو اس کی معافی نہیں ہوتی؟ بچوں سے بھی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ نیلو میں اپنے بچوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، آپ جانے دے میرے بچوں کو، نہ روکو، جاؤ بچوں مل آؤ اپنے دادا اور دادی سے۔ اگر جانا ہی ہے تو یہ میٹھی کھیر لیتے جاؤ، دادی سے کہنا مما نے بنائی ہے۔ پھر وہ دونوں چھوٹے کوے اپنے دادا اور دادی سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کون آ گیا؟ آج بڑے دنوں بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ میں کھولتی ہوں۔ پھر گوری آہستہ آہستہ جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ دادی دادی، میری دادو۔ دونوں بچے اپنی دادی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، وہ انہیں گھر میں لے جاتی ہے۔ گوری بھی اپنے خون کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے، وہ روئے جا رہی تھی۔ دادو ہم تو آپ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، رلانے کے لیے تو نہیں آئے۔ بچوں آج پھر سے جینے کو دل کر رہا ہے، میں تو زندگی سے اکتا گیا تھا۔ مما نے میٹھی کھیر بنائی تھی، اب ہم ہر روز آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ آج ہم نے بہت مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈا ہے۔ بچوں یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ پھر گوری اپنے پوتے اور پوتی سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جن سے زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو اپنے رشتوں سے پیار کرو کیونکہ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جن سے زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں۔